بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس اللغة العربیہ للمبتدئین کتاب کا یہ 19واں درس ہے، الدرس التاسع عشر۔ ٹھیک ہے، لیسن نمبر 19۔ اس لیسن میں ہم فعل مضارع کے ساتھ مفعول بہ کا استعمال کرنا سیکھیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ فعل ماضی کے ساتھ مفعول بہ کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم فعل مضارع کے تعلق سے پڑھیں گے، ساتھ ہی اس میں مفعول بہ کا استعمال کریں گے۔ وکیبلری کی طرف دیکھیے، کل جو ہم نے افعال پڑھے تھے جو پاسٹ ٹینس سے متعلق تھے، اسی کے ہم یہاں پر فعل مضارع استعمال کر رہے ہیں اور پریزنٹ والا ترجمہ کریں گے۔ جیسے اکلا سے یاکلو ہے، اکلا کا مطلب اس نے کھایا، یاکلو کا مطلب وہ کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پریزنٹ والا ترجمہ کریں گے۔ اسی طرح اخذ کا مطلب اس نے لیا، یا خذ کا مطلب وہ لیتا ہے۔ اشترا کا مطلب ہوتا ہے اس نے خریدا، یشتری وہ خریدتا ہے۔ قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 افعال ہیں اور ہم انہیں استعمال کریں گے ہمارے آج کے لیسن میں۔ غسالتن یہ ایک اسم ہے، اور غسالتن واشنگ مشین کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غسالہ یعنی ایسی چیز جو غسل دینے کا کام کرتی ہے، دھونے کا کام کرتی ہے، تو اسے غسالہ کہتے ہیں۔ تو واشنگ مشین کو غسالہ کہتے ہیں۔ مکواتن، مکواتن آئرن کو کہتے ہیں، استری، کپڑے پریس جو کرتے ہیں ہم، اسے کہتے ہیں مکواتن۔ دراجتن ناریتن، دراجتن ناریتن یہ بائک کو کہتے ہیں، موٹر سائیکل جو ہوتی ہے پیٹرول پہ چلنے والی، اسے دراجتن ناریتن کہتے ہیں۔ عنب انگور کو کہیں گے، اور منغا اور منجو یہ دونوں مینگو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ منغا کہیں اور یا پھر منجو کہیں، مینگو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمرن کھجور، مجلتن میگزین، اور بستان پارک کو کہتے ہیں، باغ پارک کے لیے استعمال ہوتا ہے، بستان گارڈن۔ سوقن مارکیٹ، مساءً شام کا وقت، فی المسائی شام کے وقت میں۔ ٹھیک ہے، تصویروں کے ساتھ ریپرزنٹیشن ایک بار دیکھ لی۔ غسالتن واشنگ مشین، مکواتن استری، دراجتن ناریتن بائک، عنب انگور، منغا یا منجو مینگو آم کو کہتے ہیں، اور بستان یعنی باغ پارک۔ اب آئیے جملوں کی طرف دیکھیے کہ کس طرح سے ہم اس کے اندر استعمال کریں گے۔ یذهب حامد الى السوق، یذهب جاتا ہے، حامد حامد جاتا ہے۔ یذهب فعل ہے، فعل کے بعد فاعل آنا چاہیے، تو حامد ہمارا فاعل ہے، اسی لیے اس کے اوپر رفع پیش پڑیں گے۔ یذهب حامد الى السوق، حامد جاتا ہے بازار کی طرف یا بازار کو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الہ حرف جر، السوق یہ اس کا مجرور رہے گا، حرف جر الہ کی وجہ سے سوق کے نیچے زیر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سوق کا مطلب مارکیٹ، بازار۔ یذهب حامد الى السوق، حامد بازار جاتا ہے۔ ویشتری غسالة ومکواة ودرجة ناریة، اور یشتری، یشتری کا معنی خریدتا ہے، ویشتری اور وہ خریدتا ہے۔ اب یہاں فعل تو آ گیا، فعل کے بعد فاعل آنا چاہیے، تو یہاں لفظوں میں کوئی فاعل مذکور نہیں ہے، تو اسی لیے اس فعل کے اندر سے ایک ضمیر نکالیں گے جو اصل فاعل کی طرف اشارہ کرے گی۔ تو یشتری کے اندر سے ہوا ضمیر نکلے گی جو پوائنٹ کرے گی حامد کو۔ تو ترجمہ اس لیے ہم کریں گے وہ خریدتا ہے، وہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے۔ یشتری صرف خریدتا ہے نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے وہ خریدتا ہے، یعنی حامد خریدتا ہے۔ کیا چیز خریدتا ہے؟ تو جو چیز خریدی گئی وہ مفعول بھی بنے گا، کیونکہ خریدنا فعل ہے، خریدنے والا حامد ہے جو کہ فاعل ہے۔ اب کیا بچا سینٹنس میں؟ مفعول بچا، تو مفعول کیا چیز خریدی گئی؟ وہ ہے غسالتن،
यानी कि वॉशिंग मशीन, व मिकवातन और आयरन, व दर्रजतन नारियतन और मोटरसाइकिल यानी कि बाइक। तो ये चार चीज, ये तीन चीजें मेंशन की गई। अब देखें यहाँ पर, चूंकि ये मफऊल बन रहा है सेंटेंस में, गस्सालतन ये मफऊल बन रहा है, इसीलिए इसके ऊपर क्या है, जबर है, हालत नसबी में है, जबर वाली हालत में। और आगे देखें, ये मिकवातन और दर्रजतन नारियतन ये सब मफऊल हैं, क्योंकि खरीदने का फेल इन तमाम के लिए साबित है, तो इसीलिए ये सारे के सारे मफूल हैं। और एक जुमले में एक से ज्यादा मफूल आ सकते हैं, तो इसीलिए वाव के जरिए मजीद अफ़ाल का इजाफा किया गया, मफूलों का इजाफा किया गया। तो गस्सालतन पहला मफूल, मिकवातन ये मफूल सानी, और दर्रजतन नारियतन ये मफूल सालिस है, तीसरा मफूल है। और जोड़ा किसके जरिए गया है, वाव आतिफा के जरिए। वाव जो है दो सेंटेंसेस या दो कलिमात को जोड़ने का काम करता है, और जो एराब माकबल में है वो माबाद को भी देता है, यानी वाव से पहले जो इसम पर जो जेर जबर पेश है वही वो उसके बाद वाले इसम को भी देगा। तो गस्सालतन मफूल होने की वजह से इसके ऊपर नसब है, जबर वाली हालत है, तो मिकवातन को भी जबर आएगा, दर्रजतन नारियतन को भी जबर आएगा। ठीक है, ये एराब जो है वाव की वजह से मिला। तذهबु फातिमतु इलल बुस्तानी मसाअन। तذهबु, अब ये फेल मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस गायब के लिए। तذهबु जाती है, फातिमतु फातिमा, इलल बुस्तानी पार्क को, फातिमा पार्क में जाती है, ठीक, यानी पार्क की तरफ जाती है, ये पार्क को जाती है। मसाअन शाम के वक्त, शाम के वक्त को मसा कहते हैं, और चूंकि ये ज़र्फ बन रहा है इसीलिए ये मंसूब है। ठीक है, मंसूब है से क्या मुराद, ये ज़बर वाली हालत में है। हम इसमें ज़र्फ के बारे में पढ़ चुके हैं कि ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान होते हैं, तो ये मसाअन ये ज़र्फ ज़मान वाक़ हो रहा है। ठीक है, यानी वक्त को बता रहा है। वतश्तरी अइनबन वतमरन वमनगा, और खरीदती है, कौन खरीदती है, फातिमा खरीदती है। यानी कि तश्तरी फेल के बाद कोई फाइल नजर नहीं आ रहा, इसी में से एक जमीर निकालेंगे, हिया जमीर, जो पॉइंट करेगी फातिमा को। ठीक है, वो तश्तरी और वो खरीदती है अंगूर को, खजूर को और मैंगो को, यानी आम को। तो यहाँ भी तीन मफूल हैं, इनबन व तमरन व मंगा, ये सारे के सारे मफूल भी ही हैं। इनबन पर जबर क्यों आया, मफूल होने की वजह से। और तमरन और मनगा ये भी मफूल बन रहे हैं, और ये वाव के जरिए एराब उनका कॉपी हो रहा है। तर्जमा क्या हुआ, फातिमा शाम के वक्त जो है गार्डन में जाती है और खरीदती है, तश्तरी इनबन, और क्या क्या खरीदती है, अंगूर, खजूर और आम खरीदती है। अना अश्तरी, अश्तरी मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है, मैं खरीदता हूँ। अना अश्तरी, मैं खरीदता हूँ, अलमिकवाता मिनस सूकी। देखें, अश्तरी मैं खरीदता हूँ, क्या चीज खरीदता हूँ, अलमिकवाता प्रेस आयरन, ठीक है, इस्त्री खरीदता हूँ। ये भी मफूल बिही है, इसलिए इसके ऊपर जबर है। मिनस सूकी बाजार से, मैं बाजार से इस्तरी खरीदता हूँ। व अंता तश्तरी अत्तमरा मिनल बुस्तानी, व अंता और तू तश्तरी खरीदता है, अत्तमरा खजूर, मिनल बुस्तानी बाग में से, और तू बाग में से खजूरें खरीदता है। अना अकुलु अकुलुल लहम, अना अकुलुल लहम, मैं खाता हूँ गोश्त। आकुलु मैं खाता हूँ, क्या चीज खाता हूँ, लहमा, ये लहम ये मफूल बिही है। ठीक है, वल खुब्जा और रोटी खाता हूँ, फिस सबाही सुबह में, मैं सुबह में गोश्त और रोटी खाता हूँ। व अंता ताकुलुल इनबा व तमरा फिल मसाई, और तू खाता है
अंगूर और खजूरें फिल मसाई शाम के वक्त। ठीक है, तो तर्जुमा समझ में आ रहा है। हम इसमें खास क्या चीज देख रहे हैं, आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं कि मफूल बिही कौन कौन है सेंटेंस में। जिसके ऊपर भी आपको यहाँ जबर नजर आ रहा है, जबर वाली हालत यानी कि मंसूब है, वो मफूल बिही है। ठीक है, और तर्जुमे से भी आपको पता चल जाएगा कि मफूल कौन है। ठीक है, अंता ताकुलु, अंता यानी तू, ताकुलु खाता है, ताकुलु तू खाता है। अब देखें इसमें खाने का फेल वाक़ हो रहा, और खाने वाला कौन है, ये सामने वाला पर्सन अंता, तू है। ठीक है, तो ये फेल फाइल दोनों हो गया, ताकुलु फेल ब फाइल हो गया। अब क्या चीज खाई गई, यानी फाइल के फेल का असर किसके ऊपर पड़ा, इनब के ऊपर पड़ा, यानी कि अंगूर। क्या चीज खाई गई, अंगूर खाए गए, खजूर खाए गए। तो ये अंगूर और खजूर दोनों भी क्या है, मफऊल बिही हैं, इसीलिए उनके ऊपर जबर है। हुआ याकुलु लहमन ताज़जन। अब यहाँ तरकीब थोड़ी तब्दील है। हुआ वो, याकुलु खाता है, ही ईट्स वो खाता है, लहमन ताज़जन ताज़ा गोश्त, ताज़जन किसे कहते हैं, फ्रेश को कहते हैं, फ्रेश गोश्त, वो ताज़ा गोश्त खाता है। अब यहाँ देखें, लहमन तौज़जन, लहमन नकेरा तनवीन है, तौज़जन भी नकेरा, नकेरा के बाद नकेरा आ जाए तो मौसूफ सिफत बन जाता है। तो लहमन मौसूफ, तौज़जन उसकी सिफत, ये मौसूफ सिफत दोनों मिलकर ये मफूल बिही हुए याकुलु फेल के लिए। ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ हम फेल मुजारे के साथ मफूल इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो मफूल उसकी अपनी सिफत के साथ है, मौसूफ सिफत के तौर पर। वहिया तअकुलु इनबन नादिजन सबाहन व मसाहन, मसाअन। अब इसको पहचानने की कोशिश करें सेंटेंस में। वहिया और वो, तअकुलु वो खाती है। ठीक है, ताकुलु फेल बा फाइल मुअन्नस के लिए, हिया जमीर उसके अंदर है। ठीक है, वहिया ताकुलु और वो खाती है, क्या चीज खाती है, इनबन अंगूर खाती है, नादिजन, नाजिजन पके हुए को कहते हैं, सबाहन सुबह के वक्त को कहेंगे, और मसाअन शाम को कहेंगे। अब सारों के ऊपर क्या है, जबर है, यानी कि ये तमाम के तमाम मंसूब हैं, आइना बन नाजन सबाहन मसान। लेकिन वजूहात जो हैं इनकी अलग अलग हैं। इनाबन मंसूब है, यानी ये जबर वाली हालत में है, किस वजह से, क्योंकि ये मफूल बिही बन रहा है। नाजिजन ये भी मंसूब है, किस वजह से, क्योंकि ये इसकी सिफत बन रहा है, नकेरा के बाद नकेरा है तो वो उसकी सिफत बनता है, मौसूफ सिफत। तो ये नाजिजन चूंकि इनाबन की सिफत बन रहा है, इसलिए ये मंसूब है। समझ में ही बात। ठीक है, क्योंकि मौसूफ सिफत का इराब एक होता है। अब उसके बाद सबाहन भी है, सबाहन सुबह के वक्त को कहते हैं, और मसाअन शाम के वक्त को कहते हैं। ये सुबह ये शाम ये जो है इसमें ज़र्फ है, जो वक्त को बतला रहे हैं, तो इसलिए ज़र्फ होने की बुनियाद पर ये क्या है, मंसूब है, यानी इनके ऊपर ज़बर आया है। समझ में ये बात। तो वही ताकुलु और वो खाती है अंगूर, पके हुए अंगूर, इनबन नाजिजन पके हुए अंगूर, सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में। अना आखुजु मजल्लतन अरबियतन, अना मैं, आखुजु मैं लेता हूँ, मजल्लतन अरबियतन अरबी मैगजीन। अब ये अरबी ये लफ्ज सिफत बनेगी मजल्ला के लिए, क्योंकि ये नकेरा के बाद नकेरा है। ठीक है, तो मजल्लतन मौसूफ, अरबियतन उसकी सिफत, लेकिन इसके ऊपर जबर क्यों है, मफूल बिही होने की वजह से। ठीक है, अना आखुदु मैं लेता हूँ, मजल्लतन अरबियतन अरबी मैगजीन, व अक़रऊहा और मैं उसे पढ़ता हूँ, किसे पढ़ता हूँ, मैगजीन को। चूंकि मैगजीन लफ्ज जो है मुअन्नस है, मजल्लतन ताए तानीस है, इसीलिए उसके लिए जमीर जो इस्तेमाल की वो भी मुअन्नस के इस्तेमाल की, हा जमीर। व अक़रऊहा और मैं उसे पढ़ता हूँ, फिस सबाही सुबह के वक्त, व अंता और तू तअखुज़ु लेता है,
मजल्लतन हिंदीयतन, हिंदी मैगजीन, तू हिंदी मैगजीन लेता है। व तक़रऊहा, और तू उसे पढ़ता है। फिल मसाई, शाम के वक्त। हुआ यक़रऊ, वो पढ़ता है। मजल्लत हामिदिन। अब यहाँ तरकीब बदल गई। अब तक हमने क्या देखा यहाँ पर कि मफूल बिही जो जुमले में ला रहे थे हम मौसूफ सिफत के तौर पे ला रहे थे। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मुजाफ मुजाफुन इलैह की सूरत में मफूल बिही लेकर आ रहे हैं। हुआ यक़रऊ, वो पढ़ता है। ठीक है, वो पढ़ता है। ये यक़रऊ फेल ब फाइल, इसके अंदर हुआ जमीर पोशीदा है। हुआ यक़रऊ, वो पढ़ता है। क्या पढ़ता है? मजल्लत हामिदिन, हामिद की मैगजीन। मजल्ला, ये मुजाफ कैसे पता चला आपको? ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, इसका मतलब ये मुजाफ है। तो हामिद मुजाफुन इलैह होगा, इसीलिए इसके ऊपर कसरा यानी जेर पड़ेंगे। मजल्लत हामिदिन, हामिद का मैगजीन। ठीक है, तो हुआ यकरो मजल्लत हामिद। अब मजल्लता के ऊपर जबर क्यों आया? ये मफूल बिही बन रहा है इसलिए, और ये आगे मुजाफ बन रहा है इसलिए सिर्फ एक ही जबर आया, दो नहीं आए। ठीक है, क्योंकि मुजाफ के ऊपर अलिफ लाम तनवीन दोनों नहीं आते। तो मजल्लत हामिदिन का क्या मतलब हुआ? हामिद की मैगजीन। तो ये मुजाफ मुजाफुन इलैह मिलकर ये मफूल बिही हुए, किसके लिए? यकरऊ फेल के लिए। वही तकरऊ मजल्लती, वही, और वो तकरऊ, तकरऊ फेल ब फाइल। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों भी फेल और फाइल एक ही जगह आ गया। तकरऊ, वो पढ़ती है। मजल्लती, मेरा मैगजीन। मजल्लतुन, मैगजीन, और या मुतकल्लिम की है, मेरा मैगजीन। और मैंने कहा कि जब कभी किसी इसम के साथ ज़मीर मुत्तसिल आ जाए, अटैच प्रोनाउन आ जाए, तो तरकीब मुजाफ मुजाफुन इलैह वाली बनेगी। ठीक है, तो मजल्ला मुजाफ और या ज़मीर उसका मुजाफुन इलैह है। तो ये मुजाफ मुजाफुन इलैह मिलकर ये मफूल बिही बने, किसके लिए? तकरऊ फेल के लिए। ठीक है, तो खुलासा कलाम ये हुआ कि इस लेसन में हमने क्या देखा कि फेल मुजारे, फेल मुजारे के साथ मफूल बिही कैसे इस्तेमाल करना है। और फेल मुजारे किसे कहते हैं? ऐसा फेल जो प्रेजेंट या फ्यूचर के माना को बतलाए। और उस पहचानने का तरीका क्या है कि उसके शुरू में अलामात आती हैं चार किस्म की। या तो उसके शुरू में जो है या आएगी, जैसे कि ज़हाबा के शुरू में यज़हबू या आती है, या फिर उसके शुरू में ता आती है तज़हबू, या उसके शुरू में अलीफ आता है अज़हबू। अभी यहाँ अज़हबू तो नहीं है, अश्तरी है, अलीफ आता है। ठीक है, जैसे आकुलु, अज़हबू, आखुजू, इस तरह से। देखें, आखुजू, अकरऊ, मैं पढ़ता हूँ। या फिर नून आता है। ठीक है, जैसे कि नज़हबू, नज़हबू मतलब हम जाते हैं। नअकुलु, हम खाते हैं। नअखुजू, हम लेते हैं। समझ में ये बात? तो ये चार अलामतें हैं फेले मुजारे की। अब नीचे जाएंगे तो चंद एक्सरसाइजेस आपके सामने हैं। मा हाजा, ये क्या है? अंगूर की तस्वीर है तो कहेंगे हाजा इनबुन, ये अंगूर है। मैं याकुलुल इनबा, मैं याकुलु, कौन खाता है? अल इनबा, अंगूर को। अना आकुलुल इनबा, मैं अंगूर खाता हूँ। हुआ याकुलु, या फिर वो अंगूर खाता है। ठीक है, हुआ याकुलुल इनबा। तो इनब ये मफूल बिही है इसलिए वो मंसूब है। मा हाजिही, ये क्या है? हाजिही मिकवातुन, मिकवातुन मुअन्नस है तो हाजिही इस्तेमाल किया। मैं यश्तरी मिकवाता, इस्तरी कौन खरीदता है? हामिदुन यश्तरी अल मिकवाता, हामिद इस्तरी खरीदता है। ठीक है, हल हाजिही दर्रजतुन नारियतुन, क्या ये मोटरसाइकिल है? नाम, हाजिही दर्रजतुन नारियतुन। मैं यश्तरी दर्रजतन नारिया, कौन मोटरसाइकिल खरीदता है? हामिदुन यश्तरी अद्दरवजतन नारिया, हामिद जो है मोटरसाइकिल खरीदता है। तो दर्रजा ये मौसूफ, अन्नारिया ये उसकी सिफत, ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? मफूल बिही बन रहे हैं यश्तरी फेल के लिए। मा हादिही, ये क्या है? हादिही मजल्लतुन, ये मैगजीन है। हल तक़रउल मजल्लतल अरबियत, क्या तू पढ़ता है अरबी मैगजीन? नाम,
انا اقرأ المجلۃ العربیۃ، ہاں میں عربی میگزین پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب اس کی نیچے تصریفات دی گئی ہیں ضمیروں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کون سے فعل کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ رائٹ سائڈ میں لکھا ہوا ہے. جیسے کہ یاکلو کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے، یاکلانی میں ہما ضمیر ہوتی ہے، اس طرح سے وہ بھی دیا ہوا ہے. اور چاروں افعال جو ہم نے پڑھے ہیں اس کی مکمل گردان دی گئی ہے، یاکلو، یاکلانی، یاکلونا سے لے کر ناکلو تک. ٹھیک ہے. تو اسے آپ یاد کر لیں، بار بار پڑھیں، ریویژن کریں، تو ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے گا آپ کے. ٹھیک ہے. چلیے، آج کے لیے اتنا کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.